Hello and welcome. Welcome to a new chapter in Science 2, which is chapter number 1, Heredity and Evolution. And this is our first learning session for this chapter. Okay. So, what is the meaning of the word heredity and what is the meaning of the word evolution? Let's begin there. So, what does heredity mean? It means transfer of biological traits or characters from one generation to another generation. So, what is biological traits या फिर characters? इसका मतलब क्या होता है? Is my hair straight or is it curly? मेरे बालों का कलर क्या है? What is the color of my eye? What is my skin color? Will how will my body be? Will it be strong or will it be weak? What will be my height? How will my voice sounding? How will my voice sound? Will it be very deep or will it be high pitched? All these are biological traits or characters. Okay, and how do we get these traits or characters? We get it from our parents, right? So how do these characters, biological traits transfer from our parents' generation to our generation? That is known as heredity. Okay. Then what is evolution? So humans are believed to be evolved from monkeys, right? Earlier, we used to have a lot of body hair. We used to stoop, सतेड़ा होके चलते थे. हमारे jaws काफी बड़े हुए करते थे. So on and so forth. So we used to look very different thousands of years back. So वो जो thousands of years back हम जैसे दिखते थे, हम जैसे रहते थे, हमारे जो biological traits थे, हमारे जो characters थे, वो तब भी से लेके अब तक हजारों साल में कैसे चेंज हुए, जैसे इवॉल्व होना इन चेंज होना. ओके. सो कैसे इवॉल्व हुए उसको बोलेंगे इवोल्यूशन. ओके. एंड दैट्स नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस. इवोल्यूशन हर ऑर्गेनिज्म में होता है, हर लिविंग बीइंग में होता है, राइट? सो प्लांट्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड, many animals also have evolved and humans also have evolved, and it takes thousands of years for evolution to take place. So you're going to study these two things in this chapter, heredity and evolution. Okay. And like always, why do we study this chapter? What is so special about this chapter? Why is it interesting to study this chapter? That we'll first see before we actually start the chapter, right? So I've made a list over here. What is so interesting? What is so special about this chapter? I'm going to read out each and every one of them, and I'm going to explain each and every one of them. Okay. So heredity is important to all living organisms as it determines which traits are passed from parent to child, right? हेरिडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए? क्योंकि हेरिडिटी डिसाइड करेगा कि कौन से ट्रेट्स पेरेंट से लेके चाइल्ड तक पास होने वाले हैं. ओके. और वो कैसे चूज करते हैं? आई मीन हाउ इज इट चोजन बाय नेचर कि कौन से ट्रेट्स पास होने चाहिए, कौन से ट्रेट्स पास नहीं होने चाहिए? इट इज चोजन बाय नेचुरल सिलेक्शन. ओके. जिस ट्रेट्स की वजह से स्पीशीज और बढ़ेंगे, वैसा वैसे ट्रेट्स नेचुरल सिलेक्शन सिलेक्ट करेगा. ओके. आई एम श्योर यू मस्ट हैव studied natural selection in detail in your previous grades. Okay. So heredity क्यों important है? कौन से traits pass down होने वाले वो पता चलेगा और वो natural selection से होता है. Next, manipulating chromosomes. Chromosomes, if you all remember, the smallest unit जहाँ पे हमारे traits के बारे में information store किया जाता है उसको बोलते हैं जीन. बहुत सारे जीन साथ में आ जाएंगे उसको बोलेंगे डीएनए. डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल किसके अंदर होता है? सेल के अंदर. सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनेगी. ओके. सो जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ये लेवल्स, ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं. ओके. सो क्रोमोसोम्स को मैनिपुलेट करना यानी कंट्रोल करना. बाय मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग क्रोमोसोम्स through cross pollination. What is cross pollination? Pollination is one of the ways how plants reproduce. Okay. So जो pollen grains होंगे, जो मेल गैमेट होगा वो जाएगा फीमेल एग के पास, जो एक या तो सेम फ्लावर में हो सकते हैं या फिर अलग अलग फ्लावर्स में हो सकते हैं. सो क्रॉस पॉलिनेशन से हम लोग क्रोमोसोम्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? समझो एक प्लांट में बहुत अच्छा ट्रेट है कि एक प्लांट है जो बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर रहा है और दूसरा प्लांट है जिसके फ्रूट्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं, राइट? तो तुम क्या करोगे? इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेट करोगे. यहाँ के पोलन ग्रेन्स निकाल के इसके फ्लावर्स में डाल दोगे, तो इसमें से जो नया प्लांट निकलेगा उनके पास दोनों के ट्रेट्स होंगे. कम पानी में भी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, उसके फ्रूट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी होंगे. तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन. हम चूज करेंगे कौन से प्लांट का पोलन ग्रेन्स कौन से प्लांट के फ्लावर में जाएगा. और उसके वजह से ये डेवलप्ड प्लांट्स दैट आर रेजिस्टेंट टू हीट. ऐसे प्लांट्स हम लोग ने डेवलप किए जो है रेजिस्टेंट टू हीट, यानी बहुत ज्यादा गर्मी होगी फिर भी वो सर्वाइव करेंगे. ड्रॉट यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर, राइट? फिर भी वो लोग सर्वाइव करेंगे. इंसेक्ट्स उनको
हार्म नहीं कर पाएंगे, और ऐसे हम प्लांट्स बना सकते हैं, हेंस देयर बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। इससे क्या होता है, उतने ही लैंड में हम अभी ज्यादा फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दिस इज also part of biotechnology, so it will feel like, okay, this sounds more like the previous chapter, biotechnology. Next, identifying genes that can cause birth defects is the first step in preventing or treating those defects. Okay, what are birth defects? Defects यानी कोई तो खराब। okay, so हमारे बॉडी में जो बर्थ से, जन्म से प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, खराबी होती है, उसको बोलेंगे बर्थ डिफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ले लो, राइट, some people unfortunately they are born blind, some people unfortunately cannot speak from the time they are born, so all these are birth defects जो जन्म होते समय ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तब भी से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो बर्थ डिफेक्ट्स, सो आइडेंटिफाइंग जीन्स दैट कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, वो बर्थ डिफेक्ट कौन से जीन की वजह से हो रहा है, अगर ये एक बार पता चल गया, दैट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग दोज डिफेक्ट्स। या तो वैसा बर्थ डिफेक्ट होने से अगर तुम्हें रोकना है, या फिर एक बार ऑलरेडी हो चुका है ऐसा कोई बर्थ डिफेक्ट, बर्थ हो चुका है ऐसे चाइल्ड का, तो उसको कैसे ठीक करे, ट्रीटमेंट कैसे दे उसको, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन से जीन्स है जिसकी वजह से ये बर्थ डिफेक्ट हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना। राइट, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू क्योर बर्थ डिफेक्ट्स और टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। नेक्स्ट, डीएनए टेस्टिंग has had huge impacts on criminal justice system. Again, we have seen in detail in our previous chapter, biotechnology. हमने देखा था, राइट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो डीएनए टेस्ट की वजह से हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, काफी उस पर बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये मर्डर जो है वो क्राइम पे था, या क्राइम सीन पे था या नहीं। अगर क्राइम सीन पे उसका डीएनए मिल लिया, एंड ऑफ स्टोरी, अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकता वो क्रिमिनल, राइट। सो इसकी वजह से काफी फायदा हुआ है, एंड दैट इज थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। Studies around genetics and heredity continue to develop new insights in medicine and agriculture worldwide. Again, we have seen in detail in our previous chapter. मेडिसिन में कैसे हम वैक्सीन बना पा रहे, दवाई बना पा रहे यूजिंग जेनेटिक्स, एंड जेनेटिक्स को फिर हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। एंड एग्रीकल्चर, हम अच्छे क्वालिटी की क्रॉप्स बनाने लग गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने लग गए यूजिंग genetics in biotechnology. Okay. Finally, understanding heredity improves the ability to predict and control what traits are passed from parent to child. एक बार हम समझ गए कि कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं कोई भी ट्रेड्स पेरेंट से लेके चाइल्ड तक, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर तुम्हें पता है कि दो दो लोग अभी शादी करने वाले हैं, ओके, और वो शादी करने के बाद, सॉरी, शादी करने से पहले उनके जीन्स को एनालाइज कर लिया जेनेटिक इंजीनियर ने, एंड दे फिगर आउट कि इनका जो बच्चा होगा उसको ये बर्थ डिफेक्ट होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर वो पता चल गया तो पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं, राइट, एंड वी कैन टेक प्रिकॉशंस कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन इफ वी अंडरस्टैंड हेरिडिटी वेरी वेल। ओके, so these are the reasons why it is important for us to study this chapter. These are the interesting applications of this chapter, and it's very important. Okay, these are the topics we're going to cover today: DNA and RNA. So DNA and RNA we've already seen in detail in our previous grade 9. Okay, we're going to quickly revise that. And most of this today's learning session is only going to be a revision of DNA and RNA, which we have already studied in our previous class. And we're going to talk about we're going to talk a little about genetic disorders as well. Again, which we had seen in detail in our previous grade 9. And then we'll start looking at heredity and hereditary changes. Okay, so we're going to only introduce this chapter today. We're not going to cover anything significant in today's learning session. Okay, because we need to learn, or we need to revise what is DNA and RNA so that we understand whatever is upcoming in the next few learning sessions. Okay, the new words we're going to learn today are synthesis and mutation. Okay, these will be your learning objectives for today. Students will be able to recall terms and concepts related to this chapter learned in previous grades. For example, DNA तुम्हें पता होना चाहिए, RNA पता होना चाहिए, genetically passed down disease होने चाहिए, पता होने चाहिए। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो तुम्हें वापस याद हो जाना चाहिए at the end of this, by the end of this learning session. And you should be able to explain heredity and hereditary changes. इसको explain करना आना चाहिए.
So let us begin with, can you recall type of questions given on page number 1 of your science 2 textbook. First is sketch and explain structure of DNA and various types of RNA. Okay, डीएनए को पहले तुम्हें स्केच करना है यानी ड्रॉ करना है, और फिर बाद में उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, और फिर अलग अलग टाइप के आरएनए को भी एक्सप्लेन करना है. ओके, so let us start looking at the answers now. So this is how a DNA looks like. Okay, this is how a DNA looks like. This is the Watson and Crick model. Okay, you need to remember the name of this model, Watson and Crick model. So 1953 Watson and Crick proposed a model for DNA molecule. So जैसे एटम के मॉलिक्यूल एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया कि ऐसा होगा वैसा होगा. डाल्टन्स मॉडल था, थॉमसन्स मॉडल था, रूदरफोर्ड मॉडल था, बोर्स मॉडल था, सो सब लोग ने अलग अलग मॉडल्स प्रपोज किए, राइट. सिमिलरली वॉटसन एंड क्रिक ने सबसे अच्छा मॉडल प्रपोज किया था 1953 में. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the two threads या फिर strands of nucleotides coil around each other to form a double helix. Okay, so let's break this long sentence down. First, what are threads or strands? तो यहाँ पे जो light blue color में दिख रहा है, those are called as threads or strands. Okay, ये जो light blue color में outer ring दिख रही है तुम्हें, उसको बोलेंगे threads या strands. तो किससे बने हैं? They are made up of nucleotides. What are nucleotides? Those are names for a special type of molecule. एक टाइप का मॉलिक्यूल है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. तो क्या बोल रहे हैं इस मॉडल में? टू थ्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉइल अराउंड ईच अदर, ओके, टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स. हेलिक्स ये शेप तुम्हें पता है. सो व्हेन यू टेक अ कॉइल एंड यू wound it this way, उसको बोलते हैं हेलिक्स. ओके, आई एम गोइंग टू शो दिस अगेन. लुक एट माय पिक्चर. ओके, सो व्हेन यू टेक अ थ्रेड और अ कॉइल, कॉपर का वायर ले लो तो समझ लो. सो अगर तुम कॉपर का वायर लेके इसको ऐसे कॉइल कर रहे हो या फिर इसको ऐसे घुमा रहे हो तो जो शेप मिलेगा तुम्हें वो हेलिक्स मिलेगा. इसको डबल हेलिक्स क्यों बोलेंगे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट हेलिक्स है एंड यहाँ पे दूसरा हेलिक्स है. सो दो हेलिक्स एक दूसरे के आजू बाजू कॉइल हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपीयर्स लाइक अ फ्लेक्सिबल लैडर. फ्लेक्सिबल लैडर, लैडर यानी सीडी. तो अगर तुम एक सीडी इमेजिन करो, ओके, और सीडी को अगर तुमने ऐसा ट्विस्ट कर दिया तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा. ये एक सीडी लग रही है, राइट. एक सीडी को अगर तुमने ट्विस्ट कर दिया तो सीडी ऐसा दिखने लग जाएगी. सो दिस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अपीयर्स लाइक अ फ्लेक्सिबल लैडर. कोई सीडी को टेढ़ा कर दिया, मोड़ दिया तो ऐसा दिखने लग जाएगा. नेक्स्ट, ईच स्ट्रैंड इज मेड up of molecules known as nucleotides. We saw this in the previous slide as well, right. ये जो लाइट ब्लू कलर का आउटर रिंग है उसको वो न्यूक्लियोटाइड से बना है. न्यूक्लियोटाइड्स यानी एक टाइप का मॉलिक्यूल है. A molecule of nitrogenous base and phosphoric acid are joined to a molecule of sugar to form nucleotide. तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? एक नाइट्रोजन का बेस होता है, एक फॉस्फोरस का बेस होता है, और वो दोनों कैसे ज्वाइन हुए? शुगर से ज्वाइन हुआ है. ओके, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. न्यूक्लियोटाइड एक टाइप का मॉलिक्यूल है. वो जो न्यूक्लियोटाइड ये मॉलिक्यूल है ये कैसे बनता है? एक नाइट्रोजन का बेस होगा, एक फॉस्फर का बेस होगा, और वो दोनों के बीच में जो ज्वाइनिंग लिंक होगी वो शुगर की होगी. ओके, शुगर मॉलिक्यूल की. So that's how nucleotide will be formed. Next, there are 4 types of nitrogenous bases in the form of adenine and guanine, and both these together are known as purines. Okay, इन दोनों को साथ में क्या बोलेंगे? Purines. Adenine and guanine, उन दोनों को साथ में purines बोलेंगे. Next, 4 टाइप्स है, राइट. सो दूसरे तो 2 टाइप्स कौन से होंगे? थाइमीन एंड साइटोसाइन. ओके, एंड थाइमीन एंड साइटोसाइन को साथ में क्या बोलेंगे? पिरिमिडिन्स. आई रिमेंबर मैंने एक क्वेश्चन आई थिंक तुम्हारे चैप्टर असेसमेंट में भी दिया था और तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी आया था ये शायद. एंड मेनी ऑफ यू गॉट इट रॉन्ग. सो पुट इसको तुम अपने ब्रेन में छाप लो. 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में, एडेनाइन एंड गुआनाइन, उन दोनों को साथ में प्यूरिन बोलेंगे. बाकी 2 हो गए थाइमीन एंड साइटोसाइन, उन दोनों को साथ में पिरिमिडिन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म. इसलिए 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो जाते हैं. और एक इंपॉर्टेंट रूल है डीएनए में, एडेनाइन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमीन. यहाँ पे देखो, एडेनाइन है ये येलो कलर एंड ग्रीन कलर थाइमीन है. तो एडेनाइन हमेशा थाइमीन के साथ ही होगा. एडेनाइन साइटोसाइन के साथ नहीं हो सकता, एडेनाइन गुआनाइन के साथ नहीं हो सकता. एडेनाइन विल ऑलवेज पेयर अप विद थाइमीन एंड नेक्स्ट गुआनाइन विल ऑलवेज पेयर अप विद साइटोसिन. सो यहाँ पे रेड में गुआनाइन है, ऑरेंज में साइटोसिन है. ओके, सो ये लोग दोनों हमेशा साथ में होंगे. तो यहाँ पे भी तुम देखो हमेशा येलो और
ग्रीन साथ में, येलो और ग्रीन साथ में, येलो और ग्रीन साथ में, येलो और ग्रीन साथ में, एंड गुआनाइन एंड साइटोसिन साथ में होंगे. सो रेड एंड ऑरेंज विल बी टुगेदर, रेड एंड ऑरेंज टुगेदर, रेड एंड ऑरेंज टुगेदर, रेड एंड ऑरेंज टुगेदर. इनको क्या बोलते हैं? बेस पेयर्स बोलते हैं. ओके, सो रिमेंबर दीज टू थिंग्स. कौन से चार टाइप के नाइट्रोजनस बेस है और कौन से कॉम्बिनेशन में वो लोग ज्वाइन होंगे? एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ, गुआनाइन हमेशा साइटोसिन के साथ. ओके, so DNA is over, and now you are starting with RNA. What I haven't told you all, which is very very basic, which I either want you all to remember by yourself, or if you cannot remember, I want you to Google it. Is DNA का full form क्या है and RNA का full form क्या है? What is the full form of DNA and what is the full form of RNA? If you remember it, just put it in the comment section of this video. If you don't remember it, pause the video here, Google DNA का full form, Google RNA का full form, and type it in the comment section of this video. Okay, so this I am giving a small short activity in between the video. मैंने DNA और RNA का full form नहीं बताया, वो तुम लोग खुद ढूंढ लो. Okay, and comment it in the comment section of the video. So हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया एंड वी हैव आल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, राइट? सो स्केचिंग हो गया डीएनए का एंड एक्सप्लेनेशन भी हो गया. मेक श्योर यू आर ड्राइंग दीज डायग्राम्स इन योर नोटबुक्स. ओके, इसको डीएनए का डायग्राम ड्रॉ करो और ये सब कुछ कॉपी भी करो एंड आल्सो रिमेंबर देम, मेमोराइज देम. नाउ लेट अस मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए. सो न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चेन ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल. तो आरएनए मॉलिक्यूल में भी बहुत सारे आरएनए मॉलिक्यूल में भी एक लंबा चेन होगा, क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल का जो लंबा चेन होगा उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे जो छोटा टुकड़ा होगा उसका, वो होगा न्यूक्लियोटाइड, वेरी सिमिलर टू डीएनए. ओके, आरएनए न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ राइबोस शुगर, phosphate molecule and any one of the four types of nitrogenous base. ओके, तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसमें तीन चीजें होंगी. एक तो होगा राइबोस शुगर होगा, एक फॉस्फेट होगा, और जो चार नाइट्रोजनस बेस है उनमें से कोई ना कोई एक होगा. ओके, सो चार नाइट्रोजनस बेस अभी हमने पढ़े, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, और यहाँ पे एक नया वाला आ गया, यूरासिल. ओके, सो इफ यू गो बैक, यहाँ पे डीएनए में कौन से चार है? एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन एंड साइटोसिन. बट यहाँ पे यूरासिल आ गया, तो कौन सा डिलीट हो गया? देखो, एडेनाइन यहाँ पे भी है, एडेनाइन यहाँ पे भी है, गुआनाइन यहाँ पे भी है, गुआनाइन यहाँ पे भी है, साइटोसिन यहाँ पे भी है, साइटोसिन यहाँ पे भी है. सो थाइमीन सिर्फ डीएनए में होगा और आरएनए में थाइमीन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा. ओके, यू हैव टू कीप दैट आल्सो इन योर माइंड. सो आरएनए न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना है, राइबोस शुगर, फॉस्फेट, और तीसरा जो टुकड़ा होगा उसका, that will be one of the four nitrogenous bases, adenine, guanine, cytosine and thymine की जगह पे uracil, because ये RNA है. Okay, large number of nucleotides are bonded together to form macromolecule of RNA. तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आके RNA का मैक्रोमोलिक्यूल बनाएंगे. What is macro? See, macro का ऑपोजिट है माइक्रो. माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा. सो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ बॉन्ड हो जाएंगे और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम बोलते हैं RNA. So structure of RNA भी क्लियर हो चुका है. Okay, now let us look at types of RNA. So we have sketched, यानी ड्रॉ कर लिया डायग्राम डीएनए का, एक्सप्लेन कर लिया डीएनए का स्ट्रक्चर, और अभी टाइप्स देखेंगे आरएनए का. ओके, सो फर्स्ट इज राइबोसोमल आरएनए. ओके, राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम इज वन ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड अ सेल. सेल के अंदर भी बहुत अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, राइट? गोल्गी एपेरेटस सेल के अंदर होता है, राइबोसोम सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, वैक्यूल सेल के अंदर होते हैं. सो ऑल दीज आर वेरियस ऑर्गन्स इनसाइड अ सेल, राइट? सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, इनके एग्जांपल्स मैंने बोले. सो उसमें से एक होता है राइबोसोम. सो इसको राइबोसोमल आरएनए बोले, यानी राइबोसोम से कोई ना कोई कनेक्शन होगा, राइट? सो इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल, यानी सेलुलर ऑर्गेनेल कौन सा? राइबोसोम. राइबोसोम का वो कंपोनेंट है. सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम होता है, एक ऑर्गन है सेल का, और वो राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होगा, which will look something like this. Okay, और उसका काम क्या है? Ribosomes perform the function of protein synthesis. Synthesis is one of the words we are learning today, right? So synthesis यानी production. Okay, produce करना. So ribosomal RNA का क्या काम है? राइबोसोम के अंदर प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना. That is the function of ribosomal RNA. वो ऐसे दिखने वाला है. नेक्स्ट, मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर इसका मतलब क्या? मैसेज पास करने वाला कहीं से तो कहीं तक. So it carries the information for protein synthesis from genes
टू राइबोसोम। ओके, क्यों जीन से राइबोसोम क्यों जाना चाहिए इंफॉर्मेशन प्रोटीन्स कैसे बनाना है? कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स के अंदर होता है। टोल्ड यू राइट, all the genetic information is stored in our in our genes, which is inside a DNA, which makes up chromosomes, which is inside the nucleus of the cell. So nucleus के बाहर राइबोसोम होगा, और प्रोटीन्स कहाँ पे बन रहे हैं? राइबोसोम में बन रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जीन्स है, उसमें से इंफॉर्मेशन बाहर आके राइबोसोम के अंदर जाना चाहिए, ताकि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बना सके, राइट? सो वो मैसेज कौन कैरी करेगा, या फिर वो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए कैरी करेगा। ओके, it is carrying the information of protein synthesis from genes, that is DNA segment in the nucleus of the cell, to ribosome in cytoplasm of the cell. What is cytoplasm? तो कोई भी सेल होगा, सेल के अंदर जैसे हवा में तैर नहीं रहे सारे ऑर्गन्स, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म इज लाइक अ लिक्विड, और वो साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स फ्लोट हो रहे होते हैं। ओके, सो राइबोसोम, आई मीन ये जो जीन्स होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, और राइबोसोम न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होगा, तो उनके बीच में इंफॉर्मेशन mRNA पास करेगा, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, नेक्स्ट, गिव मी अ मिनट। ओके, so I think I've messed up the diagrams. Okay, so यहाँ पे rRNA लिखा है, so rRNA यहाँ पे है, okay, ribosomal RNA में, and this is mRNA is over here, right? So I have messed up the diagrams. So this is your rRNA, which is your ribosomal RNA, and this is your mRNA, messenger RNA, जिसको हमने यहाँ पे पढ़ा। Okay, so just make that note, and when you're copying in your notebooks, copy the right diagram below the right explanation. Okay, next, and the last type of RNA, ट्रांसफर RNA और tRNA, यहाँ पे डायग्राम मैंने सही रखा है। ओके, सो इट कैरीज अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑन द mRNA। इसका काम क्या है? ये ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या ट्रांसफर करने वाले हैं? एमिनो एसिड्स ट्रांसफर करने वाले हैं। क्यों ट्रांसफर करेगा राइबोसोम को? कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना। तो प्रोटीन सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट, यू नीड अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो ट्रांसफर है एमिनो एसिड्स का राइबोसोम तक, वो कौन करेगा? ट्रांसफर आरएनए। सो दिस इज हाउ ट्रांसफर आरएनए इज गोइंग टू लुक लाइक। ओके, सो नाउ वी आर डन विद द फर्स्ट कैन यू रिकॉल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये तुम्हें ऑलरेडी याद होना चाहिए चैप्टर शुरू करने से पहले, और अब तक सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है। ओके, कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, एंड ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड in detail in a previous chapter. This was just a quick revision of that. Okay, and we need all this so that we can understand our next topic in this learning, in this chapter. Okay, now coming to second question, explain the meaning of genetic disorders and give names of some disorders. Genetic disorders मतलब क्या होगा? जो जीन्स में हमारे बीमारी, डिसऑर्डर यानी बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जेनेटिक बीमारी, जो जीन्स में, जीन्स की वजह से हमारी बीमारी होती है। ओके, और उनके नाम बताने, गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। Okay, so diseases or disorders occurring due to abnormalities in chromosomes and mutation in genes are called as genetic disorders. Okay, disorders क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? वो एक बीमारी है, डिजीज है। ओके, क्यों होती है वो डिजीज? एबनॉर्मेलिटी इन क्रोमोसोम्स, हमारे जो क्रोमोसोम्स है उनमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई, वो नॉर्मल नहीं हुए, या फिर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन जीन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? दिस वर्ड वी आर सपोज टू लर्न इन दिस लर्निंग सेशन, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन? म्यूटेशन यानी चेंज, स्ट्रक्चर में जब चेंज आ जाता है वी कॉल इट एज म्यूटेशन। ओके, सो अगर जीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, देन एंड उसके वजह से जो बीमारी हो जाती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, सो व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर? ऐसी बीमारी जो क्रोमोसोम अगर नॉर्मल नहीं होगा, या फिर जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया उसकी वजह से होता है, उस बीमारी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अकर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर याद है, सब में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड लेट मी अगेन रिमाइंड यू व्हाट आर क्रोमोसोम्स। सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है इंफॉर्मेशन का? जीन। जीन बहुत एक लेंथ का जीन, बहुत सारे जीन्स को साथ में लेके आओगे तो डीएनए बनेगा, डीएनए से क्रोमोसोम्स बनेंगे। क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर है सेल के। सो कितने क्रोमोसोम्स होंगे एक ह्यूमन बीइंग, एक ऑर्गेनिज्म के सेल में? वो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैव 23 पेयर्स। 23 का डबल क्या हो गया? पेयर्स बोला ना मैंने, इसलिए डबल। 23 का डबल क्या हुआ? 46। तो ह्यूमंस में हमेशा 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए।
तो अगर समझो 46 नहीं हो 47 है तो इंक्रीज हो गया क्रोमोसोम, या फिर 45 है डिक्रीज हो गया क्रोमोसोम। तो इंक्रीज या डिक्रीज हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उससे जो बीमारी होगी उसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे। या फिर डिलीशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, कोई ना कोई पार्ट डिलीट हो गया क्रोमोसोम का, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, उससे जो बीमारी होगी। एंड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, much detail because we're going to learn translocation in very much detail in our next learning session. So मैं ट्रांसलोकेशन के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। फॉर नाउ जस्ट ऐसा समझ लो कि क्रोमोसोम का एक टुकड़ा निकल के कहीं और पे चला गया तो क्या होने वाला है। सो इन चीजों की वजह से जो बीमारियां होती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एंड एग्जांपल्स, so there are three types of genetic disorders, okay? Polygenic, monogenic and chromosomal. पॉलीजेनिक, ओके, पॉलीजेनिक से पहले मोनोजेनिक देख लेते हैं। मोनो मतलब क्या, एक, बराबर। एंड जेनिक मतलब जीन्स में प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर यानी बीमारी। सो मोनोजेनिक यानी एक जीन में अगर प्रॉब्लम हो गया, म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है उसको बोलेंगे मोनोजेनिक डिसऑर्डर। ओके, एग्जांपल्स क्या है? एग्जाम्पल्स आर एल्बिनिज्म, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया काफी डिटेल में हमने देखा था ग्रेड 9 में। हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया वी हैड सीन इन आवर प्रीवियस चैप्टर, राइट, बायोटेक्नोलॉजी में, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक्सेट्रा। ओके, सो ये सब एग्जाम्पल्स है बीमारियों का जो एक जीन में म्यूटेशन की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। सो मोनोजेनिक यानी एक जीन में प्रॉब्लम है। तो पॉलीजेनिक का मतलब क्या होगा? पॉली यानी मेनी, ओके। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी बहुत सारे अलग अलग एक्स के या फिर वेरिएबल के पावर्स होंगे। सो पॉली मतलब मोर देन वन, एंड जेनिक मींस जीन्स। सो एक से ज्यादा जीन्स में अगर गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से जो बीमारी होगी वो हो जाएगा पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। एग्जांपल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, एस्थमा, ओबिसिटी एक्सेट्रा। तो ये सब जो बीमारियां है वो एक जीन की वजह से नहीं होते, बहुत सारे जीन्स में प्रॉब्लम आता है, डिसऑर्डर डिसऑर्डर हो जाता है, या फिर डिलीशन हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है एक से ज्यादा जीन में, इसकी वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं। ओके, एंड फाइनली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आई टोल्ड यू, राइट, हर ऑर्गेनिज्म में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए नंबर फिक्स्ड होता है। ह्यूमंस में 23 पेयर्स या फिर 46 होते हैं। तो अभी कुछ ऐड हो गए, कुछ कम हो गए, तो उससे जो डिसऑर्डर होंगे, उससे जो बीमारी होगी उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। एग्जांपल, डाउन सिंड्रोम, अगेन वी सॉ दिस इन डिटेल इन previous grade, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। So these are the different genetic disorders. I mean, we first saw the meaning of genetic disorder and then we saw some examples of genetic disorders. Okay, so we have almost revised 70 to 80% of our previous chapter, previous grade का chapter. 9th स्टैंडर्ड में जो हेरिडिटी पे चैप्टर था, ऑलमोस्ट 50, 60, 70% हमने रिवाइज कर लिया। ओके, सो अब जाके हमारा कैन यू रिकॉल का सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। सो अब जाके कैन यू रिकॉल खत्म हुआ। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ओके, सो इसमें बस हिस्ट्री बता कि क्या हिस्ट्री था इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का, इसके कॉन्सेप्ट्स का, वो बस यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, so you know that heredity is transfer of biological characters from one generation to another via genes. ये हमने ऑलरेडी देख लिया था स्टार्टिंग के, आई मीन फर्स्ट स्लाइड पे, इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड में, राइट, कैसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं जीन्स में से, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, नेक्स्ट, ग्रेगर जोहन मेंडल इज द पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मेंडल ये नाम बेल रिंग कर रहा है क्या तुम्हारे मन में? इज इट रिंगिंग अ बेल इन योर माइंड? मेंडल, मेंडल, हमने काफी डिटेल में एक स्पेशल टाइप का प्रोसीजर सीखा था 9th स्टैंडर्ड में, विच वाज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर टी प्लांट्स। इफ यू रिमेंबर, मैंने वर्कशीट्स लाए थे और वर्कशीट में मैंने बताया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं, फर्स्ट जनरेशन कैसे बनाते हैं, सेकेंड जनरेशन कैसे बनाते हैं। मैंने एक टेबल बनाया था, फिर टेबल से फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब निकाला था हमने। सो ये सब किसने किया था? एक्सपेरिमेंट्स ये सब मेंडल ने किया था। सो ग्रेगर जोहन मेंडल उसका पूरा नाम है। ही वाज अ पायोनियर, यानी ही वाज अ लीडर इन मॉडर्न जेनेटिक्स। ओके, मॉडर्न जेनेटिक्स जो है वो उसने शुरुआत की थी। इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजंस ऑफ हिज रिसर्च अबाउट हेरिडिटी। सो मेंडल ने अपना रिसर्च किया था, बट उसके आजू, उसके टाइम पे जो उसके साथ में जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, उनको कुछ समझा नहीं। बहुत समय लगा पूरे वर्ल्ड को उसके रिसर्च को समझने में। ओके, ही वाज वेरी वेरी मच अहेड ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट,
In 1901, the reasons behind the sudden changes were understood due to mutational theory of Hugo de Vries. Okay, तो ह्यूगो नाम का एक रिसर्चर आ गया और उसने कौन सी थियरी बताई? म्यूटेशनल थियरी। म्यूटेशनल थियरी के हिसाब से जो भी हमारे जीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशंस होता है। म्यूटेशन यानी चेंज इन स्ट्रक्चर। जीन्स हमेशा चेंज कर जाते हैं स्ट्रक्चर में रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस, राइट, कोरोना वायरस में बोल रहे कि बहुत सारे म्यूटेशन हो रहे हैं वायरस में। स्वीडन में जो वायरस है, जो इंडिया में वायरस है, जो ब्राजील में वायरस है, उन सब का जो जीन्स है वो थोड़े थोड़े चेंज हो गए क्योंकि नेचुरली जीन्स अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेशनल। तो जो म्यूटेशनल थियरी है ये किसने दी थी? ह्यूगो। उसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर तुमने समझो मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं वैक्सीन बना रहा हूँ कोरोना वायरस के लिए, तो मैं कोरोना वायरस का सैंपल लूंगा, उसको स्टडी करूंगा, उसके ऊपर वैक्सीन बना दूंगा, राइट। बट समझो जब तक मैं वैक्सीन बना रहा हूँ तब तक वो म्यूटेट हो चुका है। तो एक्चुअल में जो मार्केट में चल रहा है वायरस, तो लोगों में फैल रहा है वायरस, वो म्यूटेट हो चुका है। तो मेरा वैक्सीन उस पर काम करेगा क्या? नहीं। मैंने जिस वायरस के जीन्स के लिए उसको बनाया है वैक्सीन को, अभी वो तो वैसा रहा नहीं, वो तो चेंज हो चुका है। तो वैक्सीन बनाने में प्रॉब्लम आ सकता है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशनल थियरी। तो बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे थे तभी वो म्यूटेशनल थियरी से एक्सप्लेन होगा ह्यूगो के। नेक्स्ट, मीनवाइल, तो ये कब हुआ? 1901 में, 20th सेंचुरी के एकदम बिगिनिंग में। So 1902 में वॉल्टर सटन observed the paired chromosomes in cells of grasshopper. Until then it was not known to anyone. तो उसने देखा कि grasshopper के cells में chromosomes pairs में यानी दो दो साथ में। Okay, so now we know that बहुत सारे organisms में chromosomes दो दो साथ में होते हैं। For example humans में भी there are 23 pairs, और जो 23 pairs है 46 है वो दो दो साथ में होते हैं, इसलिए हमें टोटल 23 मिलते हैं। तो तब तक पता नहीं था कि दो दो क्रोमोसोम जनरली साथ में होते, वो इसने ढूंढा था वॉल्टर सटन ने इन 1902। नेक्स्ट, research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. फिर रिसर्च शुरू हो गया कि ये जीन्स होते क्या है, नेचर ऑफ जीन्स क्या है, जीन्स कैसे काम करते हैं। और ये सब कब शुरू हुआ? जब किसी ने प्रूव किया कि जीन्स कैसे कैरी होते हैं क्रोमोसोम से। सो तभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं, इतने अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे। सो इसके वजह से हमें तब इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। बट हमें फिर बाद में पता चला कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होता है। जब ये पता चल गया तब जीन्स के ऊपर काफी रिसर्च शुरू हो गया। ओके, कि ये जीन्स होते क्या है, कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट, थ्रू विच 1944, सो 1944 तक ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट, ट्रियो यानी तीन लोग, तीन साइंटिस्ट ने मिलके, फर्स्ट इज ऑसवाल्ड एवरी, देन मैकलिन मैकार्थी, एंड लास्ट इज कोलिन मैक्लियोड। ओके, interesting pronunciations, right? They're very fun to pronounce. Try to pronounce them after me. Okay, Oswald Avery, मैकलिन मैकार्थी, कोलिन मैक्लियोड। तो जो तीन साइंटिस्ट का ट्रियो था, टीम था, उन्होंने 1944 तक क्या प्रूव कर दिया? दे प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। सो इन तीनों ने क्या प्रूव किया? वायरस को छोड़ के बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीन्स, डीएनए या फिर डीएनए होता है जिसमें सारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, आई रिमेम्बर मैंने पिछले किसी तो एक वीडियो में बोला था कि वायरस साइंटिस्ट आर स्टिल डिबेटिंग, साइंटिस्ट में अभी भी कंसेंसस नहीं है, सब लोग अग्री नहीं करते कि वायरस लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। देयर इज नो कंसेंसस, सब लोग अग्री नहीं करते, डिसएग्रीमेंट से अभी भी डिबेट चलते हैं साइंटिस्ट में कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। एंड समवन, आई रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज रचना हु commented on my video कि I think that viruses are living things. See, the problem with viruses is there are many problems why we cannot simply say कि living है non living है, but one of the problems is कि उनमें डीएनए नहीं होता। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है, बट एक वायरस है जिसके अंदर डीएनए नहीं होता है। सो इसलिए सम साइंटिस्ट है कि नहीं, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानना चाहिए, उसको लिविंग बीइंग नहीं मानना चाहिए। ओके, एंड देयर आर वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स ऑन द अदर साइड एज वेल। ओके, so maybe if you want to research this, you want to find out more about this, you can watch a few videos on YouTube about whether virus is living or non-living. You can read things up on Google, and maybe then you can put your views after reading and after knowing a little more about it in the comment section of this video. Okay,
कि why do you think viruses are living and why do you think viruses are not living? What is your conclusion after reading a little more? Okay. Next, in 1961, ये कहानी कब तक थी? लास्ट कहानी कहाँ पे छूटी थी हमारी? लास्ट कहानी यहाँ पे छूटी थी 1944 में. अब आ जाए 1961 में. सारे वर्ल्ड वॉर्स वगैरह खत्म हो चुके हैं, अभी कोल्ड वॉर चल रहा है. यहाँ पे फिर रिमेंबर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ साइंस. तो यहाँ पे जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, that you should do for each and every topic in science. It's very fascinating. For example, 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. सो वर्ल्ड वॉर 2 में साइंटिस्ट कैसे रिसर्च कर रहे थे, उनका क्या प्रायोरिटी था, उनके गवर्नमेंट्स उनको क्या बोल रहे थे, उसको फंडिंग कहाँ से मिल रहा था. तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. यहाँ पे 1961 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है. जापान को एटॉमिक बॉम्ब से उड़ा चुके हैं. अब कोल्ड वॉर चल रहा है यूएसए और यूएसएसआर में. सो all this is very interesting when you integrate everything together in history, then it becomes much more fun. हिस्ट्री भी ज्यादा फन हो जाता है, साइंस भी ज्यादा फन हो जाता है. ओके, सो 1961 में फ्रेंच जेनेटिसिस्ट, ओके, जेनेटिसिस्ट मतलब क्या, जो जीन्स का स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे जेनेटिसिस्ट. सो फ्रांस में एक जेनेटिसिस्ट था, फ्रैंकोइस जैकोब. ओके, फ्रैंकोइस जैकोब एंड जैक मोनोड. सो इन्होंने क्या प्रपोज किया? They proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया किसका? प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस का. प्रोटीन्स कैसे बनते हैं उसका एक मॉडल प्रपोज किया. किसको यूज करके? बैक्टीरिया सेल्स के डीएनए की हेल्प लेके. ओके, इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स हिडन इनसाइड डीएनए. एक बार तुम्हें प्रोटीन्स कैसे बनते हैं वो पता चलने लग गया तो तुम बता सकते हो, अच्छा इस तरीके से प्रोटीन बनता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन आता है, प्रोटीन बन जाता है, फिर प्रोटीन दूसरे जनरेशन में पास हो जाता है, तो बहुत कुछ पता चल जाता है. एक बार पता चल कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं हमारे सेल्स में, तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती है. सो ऐसे बहुत सारे जीन्स के बारे में जो हिडन कोड्स थे, जो हमें नहीं पता था, वो पता चलने लग गया. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. इसके वजह से कौन सी टेक्निक डेवलप हो गई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या? सी कॉम्बिनेंट इसका मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन. सो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होगा? अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को कंबाइन कर लो. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. आज का जो बायोटेक्नोलॉजी है वो यही से आया. इन हेरिडिटरी डिस्कवरीज में से, जेनेटिसिस्ट के डिस्कवरीज में से ही बायोटेक्नोलॉजी निकला. ओके, सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी उसकी वजह से आ गई कि हमें एक बार पता चल कि प्रोटीन कैसे बनते हैं, तो तुम अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को कंबाइन कर सकते हो. ओके, और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. लास्ट पॉइंट, द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस हमने देखा था राइट इन लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी वाले. डायग्नोसिस यानी पता करना कि कौन सी डिजीज हुई है, कौन सी बीमारी हुई है. ट्रीटमेंट, उसको ठीक करना. एंड प्रिवेंशन, होने से बचाना, होने से रोक लेना. ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स यानी जो हमारे पेरेंट्स से हमें हो जाता है. पेरेंट्स को ये डिजीज था, इसके वजह से हमें भी हो गया. ओके, सो उन डिसीजेस को हेरिडिटरी डिजीज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मलेरिया मेरे पेरेंट्स को हुआ था, इसका उसका मतलब ये नहीं कि मुझे भी होगा, राइट? सो दैट इज नॉट हेरिडिटी. सो ऐसे कुछ बीमारी होते हैं जो पेरेंट्स की वजह से हमें आ जाते हैं, हमारे जीन्स में होते हैं. सो उनको अगर डायग्नोज यानी पता करना है कि ऐसा होने वाला है क्या, या ऐसा हुआ है क्या, तो उसको ठीक करना है, ट्रीटमेंट देनी है, तो प्रिवेंट करना है, होने से पहले ही रोक देना. उसके लिए साइंस ऑफ हेरिडिटी का पता होना काफी इंपॉर्टेंट है. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में, राइट? बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स को कैसे ऐड कर सकते हो, प्लांट्स को कैसे ऐड कर सकते हो, टिश्यू कल्चर पढ़ा था हमने. सो वो सब भी साइंस ऑफ हेरिडिटी में से आता है. एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, उसमें भी यूजफुल होता है. इसके बारे में एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, राइट? इंडस्ट्री कैसे यूज करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ये सारी की सारी चीजें हेरिडिटी में से आई है. ओके, सो द रीजन तुम्हें लग रहा है कि ये जो ऑलरेडी पढ़ा है वो वापस आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, राइट? हमने फर्स्ट चैप्टर स्किप कर लिया था, और फिर बाद में जो एंड के चैप्टर वो पहले पढ़ लिया था, इसलिए काफी सारा नॉलेज हमें ऑलरेडी है. तो ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. एंड वी हैवंट रियली बिगन द चैप्टर, हमने बस इंट्रोड्यूस किया है. वी हैव जस्ट सीन द इंट्रोडक्शन टुडे. ओके, so that is it for this learning session.
just check whether you have accomplished today's learning objective or not. Can you recall terms and concepts related to the chapter learned in previous grades? Can you tell me? I hope तुमने अब तक डीएनए का फुल फॉर्म ढूंढ लिया, आरएनए का फुल फॉर्म ढूंढ लिया. कमेंट से मुझे दिखने चाहिए. ओके, सो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीएनए का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, व्हाट आर पिरामिड्स, what are the four types of nitrogenous bases, what are RNAs, RNAs का स्ट्रक्चर क्या है, तीन टाइप के RNA क्या है, उनका फंक्शन क्या है, genetic disorders क्या है, what are the examples of few genetic disorders. If you are able to tell me all this, it means you have accomplished today's learning session. If not, you need to do something about it. नेक्स्ट, फाइनली, कैन यू एक्सप्लेन मी हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. हेरिडिटी का मतलब क्या, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, और क्या क्या छोटे छोटे डिस्कवरीज हुए अब तक, वो तुम शॉर्ट में बता सकते हो क्या. इफ यस, then you have achieved today's learning objective. Okay, so that's it for, oh, before that's it, these are the new words we learned today. Synthesis is production. Protein synthesis यानी प्रोटीन्स का प्रोडक्शन. म्यूटेशन यानी चेंज इन स्ट्रक्चर. तो ये म्यूटेशन हमने जीन्स के लिए पढ़ा था, राइट. सो जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब है जीन्स के स्ट्रक्चर में चेंज आना. ओके, so these are the new words we learned today, and that is it for this learning session. I hope you enjoyed, I hope you understood everything, and we'll see each other in the next one. Till then, bye and peace.